Assalamu alaikum. Ji, can you hear me? जी आप ऑडिबल है। अच्छा जी. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum and very good afternoon, everyone. Well, I'm Professor Dr. Neela Anwar from the Department of Chemistry, UT Lahore. Well, I have more than 23 years of rich teaching, research, training, and administrative experience. My area is chemistry. My major is chemistry, but my area of specialization is nanotechnology with particular focus on environment, energy, and healthcare applications. Apart from that, I'm Fulbrighter. I served in the capacity of chairperson for almost 8 years, working on women entrepreneurship. And I'm also the convener of academia industrial linkage and many other things. And I have many different international certification and awards on my credit. So that's all about myself, my little introduction. Moving forward. Well, if you want to connect with me, you're more than welcome. I would love to connect with all of you. Here is my email address, my phone, my LinkedIn profile, so we can connect through that as well. Well, the topic of today's presentation is effective presentation skills. Well, the purpose of today's presentation is to introduce you some of the novel things regarding effective presentation skills. How can we be the best presenter by using all the tools and skills? तो उनको किस तरह से use कर सकते हैं? So, if you have any question, I'll be happy to answer at the end of my presentation. My presentation would cover very clearly the introduction slides and then planning. Um, how can we know your audience, or how can we measure what we are doing? Then designing, how can we design different type of slides? Then delivering, how can we deliver effective presentations? And what are different flaws in our presentation? And what is finally successful presentation? Finally, so these are the different content. ठीक है, ये content है different जिसपे हम बात करेंगे आज. अच्छा जी. So what are effective presentation skills? Effective presentation skills क्या होते हैं? किस तरह से आप देखते हैं कि effective presentation skills हैं? ये वो abilities हैं, effective presentation skills को अगर आप define करें तो these are the abilities and sort of qualities, ठीक है, which we can possess. किसके लिए? In order to deliver a very effective, very compelling presentation. ठीक है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को, अगर आप अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उनको डिलीवर कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अच्छा, उसमें होता क्या है? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू एक्चुअली से, एंड हाउ यू स्ट्रक्चर इट. जो आप कहना चाहते हैं उसको किस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो ऑडियंस है उसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जाए, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस में जाए. ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाए. और जो मटेरियल आप इंक्लूड करते हैं, व्हाट यू से, और स्लाइड्स कैसे आप उसमें डालते हैं, कोई वीडियोस डालते हैं, कोई इमेजेस डालते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम इंशाल्लाह इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्लाइड्स को हम इकट्ठा करते हैं और किस तरह से हमें डिलीवर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए. तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अगली स्लाइड्स पे जाएंगे हम उनको क्लियरली करेंगे. डिलीवरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज क्रूशियल इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. आपको whatever your field is, either you are in teaching, आपको टीचिंग में आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, आप जो है वो कहीं किसी इंडस्ट्री में जॉब करें या इंडस्ट्री के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन चल रही है, या आपकी कोई प्रमोशन है तो आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट, आप जो प्रमोशन बोर्ड है उसमें कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोकल कॉन्फ्रेंस है, डिपार्टमेंटल मीटिंग है, एज अ चेयर आप कर रहे हैं या एज अ टीचर कर रहे हैं इनसाइड the classroom. So what are actually the abilities you possess in order to, जो कि बहुत compelling हो और effective हो
ठीक है, इंफॉर्मेशन लेती हूँ इन ऑर्डर टू इम्प्रेस योर ऑडियंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, किस तरह से आप अपनी एबिलिटीज को, क्वालिटीज को मैक्सिमम पॉसिबल वे में इफेक्टिवली यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। अच्छा जी, व्हाट इज एक्चुअली, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, व्हाट आर एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास। सबसे पहले तो आपकी जो कम्युनिकेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करता है, एनहांस करता है विद द वेरी क्लियर डिलीवरी ऑफ आइडियाज। जो आपके आइडियाज हैं उनको क्लियरली आप डिलीवर करते हैं और बहुत डाइवर्स ऑडियंस को आप एंगेज करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, इट एक्चुअली एनहांसेस योर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और सेकेंडली क्या करता है, आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हैं उनके साथ मिलकर, ठीक है। तो आपकी अगर अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग एज वेल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी। क्यों, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, इफ यू हैव वेरी गुड स्पीकिंग पावर, यू हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव करता है। तो जो तीन इंपॉर्टेंट थिंग है, एक तो इट एनहांसेस योर कम्युनिकेशन, और दूसरा इन्फ्लुएंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, आपके डिसीजन को एम्पावर करती है, एंड द थर्ड इज it builds confidence as well. So you feel confident whenever you have the preparation, और आपको लगता है कि जी मैं अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरह से तैयार है, मैं अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इन दैट केस यू फील कॉन्फिडेंट और आपको इट हेल्प्स in confidence building as well, ठीक है। So these are the three major important effects, ठीक है, जो कि effective presentation skills के लिए क्यों important है, तो because these are the three major things, ठीक है, which you need to, जिस पे आपने खास ख्याल रखना है अपना, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले हमने क्या पढ़ा, हम स्लाइड्स में बहुत क्लियरली चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, द वन स्लाइड आपके पास इंट्रोडक्शन की आ गई। उसके बाद इसी तरह आपने भी देना है, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे या एनीवेयर यू आर प्रेजेंटिंग, तो आप अपना थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस आपको जाने कि आप क्या हैं, ठीक है, और आपके बारे में, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कहाँ से हैं। सो इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारा कुछ लिंक्स दिए विच आर इम्पॉर्टेंट, कि आपके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट मेरा टॉपिक क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, उसको डिफाइन किया। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ वी आर मूविंग towards how to improve presentation skills and what we can do, हम step by step इनको देखेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम इंप्रूव करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल को। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होते हैं ना, दिस इज एक्चुअली एन आर्ट। जो पब्लिक स्पीकिंग है ये एक आर्ट है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर इफ यू आर रिहर्सिंग, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, लेक्चर देना है, अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, इन फ्रंट ऑफ योर कॉलीग्स आप करते हैं, अपने बहन भाइयों के आगे करते हैं, सो मोर यू प्रैक्टिस, मोर फ्लुएंसी यू कैन गेन, और आप ज्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं और ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक आर्ट जो है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है, ठीक है। सो इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, दिस वुड डेफिनेटली हेल्प टू रिड्यूस मिसकम्युनिकेशंस, ठीक है, और enhance your time management और capabilities to boost your leadership skills as well. जो अच्छा लीडर होता है वो बहुत अच्छा स्पीकर भी होता है, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल। तो आप जितना अच्छा स्पीकर होंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतनी लीडरशिप स्किल्स आप में ज्यादा डेवलप होंगे। तो कुछ तरीके हैं, हम आगे वन बाय वन पढ़ते हैं कि वर्क ऑन your self-confidence, how can we develop different sort of strategies for overcoming fear
जो एंजाइटी है, फेयर है, घबराहट है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड टेक्निक्स विच कैन वी कैन यूटिलाइज, और हाउ कैन वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। हम कैसे टूल्स, अगर हम पावर पॉइंट पे दे रहे हैं तो हमने किस तरह से करना है, व्हाइट बोर्ड पे दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं, हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है उसको, किस फॉरम पे दे रहे हैं, हमने किस तरह से करना है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी आप जब उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद वहां जाके आपको एंजाइटी और बार बार सांस चढ़ना और ठीक से बोला ना जाना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यू वुड डेफिनेटली गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमने इनको वन बाय वन जो है वो देखना है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन में इन सब चीजों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छी प्रेजेंटेशन में आपने क्या ख्याल रखना है, आपको पता होना चाहिए कि अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, व्हाट इज योर ऑडियंस। पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, अगर आप किसी जगह जाके प्रेजेंट कर रहे हैं और यू डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, आपको नहीं पता कौन बैठा होगा, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपसे कोई क्वेश्चनिंग हो जाती है, आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है, कोई आपसे कुछ पूछ लेता है, या आपको डेप्थ में नहीं पता कि मैंने इनको क्या पढ़ाना है, इनका क्या बैकग्राउंड नॉलेज है, तो आपकी प्रेजेंटेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू गिव अ वेरी कंपेलिंग, वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू नो योर ऑडियंस वेरी वेल। आपने अपनी ऑडियंस को जानना है कि ऑडियंस कहाँ से आई है, हु आर दे, उनकी क्या एज है, किस ग्रुप के एज ग्रुप के लोगों को आप कर रही हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, क्या वो आपके फील्ड से हैं, तो आपके लिए आसान होगा। अगर आपके स्टूडेंट हैं उसी फील्ड के, उन्होंने कोई प्री रिक्विजिट कोर्स पढ़ा हुआ है, और आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा पहला लेक्चर अपना, आपको पता होना चाहिए। आपको यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, आपको पता होना चाहिए। किसी कॉन्फ्रेंस में आप जा रही हैं तो वहां कोई इंडस्ट्री वाले तो नहीं आए हुए, वहां कोई इंटरनेशनल ऑडियंस तो नहीं है जिनकी लैंग्वेज फर्क है, आपको प्रैक्टिस फर्क करनी है, डिफरेंटली करनी है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जाके जिनके सामने आपने प्रेजेंट करना है, योर ऑडियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उनकी एज, उनका जेंडर, उनका प्रोफेशन, उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या वैल्यूज हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको कैसे देखिए, उनको क्या मोटिवेट करता है, जब आप उनको जाके बताएंगी, उनके इंटरेस्ट होंगे तो वो आपकी जो स्पीच होगी, आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, उससे मोटिवेट होंगे, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और why it matters, because by tailoring your presentation to resonate with your audience increases engagement and effectiveness। अगर आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो आपके लिए वो ज्यादा उनके साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनको ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा उनको समझ आएगी आपका। यू विल डेफिनेटली बी हैविंग अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, उतना हेल्दी कम्युनिकेशन होती है, उतना ज्यादा पावरफुल जो है वो आपका कनेक्शन बनता है, और उतना पसंद आता है ऑडियंस को आपकी प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो ये आपने जरूर जहन में रखना है कि व्हाट इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस, और व्हाट इज योर audience for that particular lecture or presentation. That is very much important. अच्छा जी, what are different keys? Identify, understanding of your audience mean, अगर हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल देखें। कोई आ रहा है जिसके साथ आपकी डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, आइदर दे आर योर स्टूडेंट्स, आइदर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई आपका जो है वो हेड है, कोई डायरेक्टर है, जो भी आपकी जो है उसमें आपने उसको बड़ा केयरफुली देखना होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि उनकी प्रोफाइल क्या है। ठीक है, वो ऑडियंस जो है वो कहाँ से आ रही है, किस टाइप की है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, यू कैन नो बेटर कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। ठीक है, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस का भी तो पता चल जाएगा ना। अगर उनके जहन में क्या चल रहा है, उनका फील्ड है नहीं है, आप उसको पढ़कर आएंगे, तो यू वुड बी
वेरी मच कॉन्फिडेंट और रिलैक्स कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन हैंडल इट वेरी वेल, ठीक है। सो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस का भी आपको पता चल जाता है और आप उसके लिए प्रिपेयर होके आते हैं। और आप क्या करते हैं, उस ऑडियंस के हिसाब से आप अपनी टोन सेट करते हैं, आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल को उनके हिसाब से करते हैं। एडेप्टेबिलिटी इन प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपकी डायरेक्टर के सामने प्रेजेंटेशन है तो आपकी टोन, आपका स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर आपके वाइस चांसलर के सामने आपकी है फॉर योर सिलेक्शन बोर्ड, आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्टाइल, आपकी टोन, आपकी एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होगा। आपके स्टूडेंट के सामने है, स्टाइल डिफरेंट होगा। इंटरनेशनल फोरम के सामने है, आपका स्टाइल डिफरेंट होगा। सो आपकी जो डिलीवरी है that should resonate with your specific type of audience, ठीक है। that is very much important, ठीक है। आपने उसको उसके हिसाब से करना है, अपनी ऑडियंस के हिसाब से स्पेसिफिक होनी चाहिए। प्लान कैसे करना है प्रेजेंटेशंस को, ठीक है, क्या करना है। इन ऑर्डर टू प्लान योर प्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कलेक्ट करना है, यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जैसे आपने कहीं जाके प्रेजेंट करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेक्चर या प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। जाहिर है बोलना है कहीं जाके तो मटेरियल कलेक्ट करना होगा, लेकिन ये याद रखें द मटेरियल कलेक्शन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी फ्रॉम द वेरी रिप्यूटेबल, रिलायबल, जो आपका सोर्स है उससे होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल जो करंट ट्रेंड्स है, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उस कोर्स में या जिसको आप प्रेजेंट करने जा रही हैं उस टॉपिक में, उसको आपने जरूर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। सो पहली बात क्या है कि आप जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना जा रहे हैं उस टॉपिक की नो होना और उस टॉपिक का मटेरियल जो कलेक्ट करना है वो रिलायबल सोर्सेज से करना है। ऐसा नहीं होता, देयर मेनी सोर्सेज जो गूगल पे पड़े हुए हैं जो कि इतने रिलायबल नहीं है। सो प्लीज डोंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रैंडम सोर्स जिसका कोई लिंक ना हो, कोई रेफरेंस ना हो। यू हैव टू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलरली अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और उसके प्रेजेंटेशन के एंड पे रेफरेंसेस आप दें भी। ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि आपके पास अप टू डेट नॉलेज बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे सोर्स से कोई रेफरेंस डाल लेती हैं या कोई रिलायबल सोर्स नहीं होता तो डेफिनेटली योर क्रेडिबिलिटी इज ऑन स्टेक। आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है ना, आपको कहेंगे कि ये सही डाटा नहीं लेकर आए। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैटर जो है वो बहुत ज्यादा करता है कि अप टू डेट नॉलेज हो और आपकी ऑडियंस की नीड के मुताबिक हो, ठीक है, और रिलायबल सोर्सेज से हो। और आपने क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है योर प्रेजेंटेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे मैंने आज ऑर्गेनाइज की आपकी प्रेजेंट के लिए जो प्रेजेंटेशन थी, मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कि कंटेंट क्या है। मैंने बताया कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, अपनी ऑडियंस को देखेंगे। तो मैंने आपको 6-7 जो है वो स्पेसिफिक बताए कि ये मेरे कंटेंट हैं जिस पे आज हम उसको कवर करेंगे। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी और फिर हमने वन बाय वन जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने बड़ी क्लियर कट वे में आपने करना है। इतना अगर एक टॉपिक आप पढ़ा रही हैं तो उसको बहुत ज्यादा आपने डेप्थ में ले जाके बहुत ज्यादा हेडिंग्स या कंटेंट इतना लंबा चौड़ा नहीं करना कि किसी की समझ में ना आए। आप 4-5 या 6 सॉलिड पॉइंट्स बनाएं, एक टॉपिक को सब डिवाइड करें इनटू डिफरेंट हेडिंग्स और फिर उनको वन बाय वन विद वेरी क्लैरिटी, ठीक है, उसको लेकर चलें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपने ऑर्गेनाइज करना है योर मटेरियल इन अ गुड वे। अच्छा जी, जब ऑर्गेनाइज करना है तो आप अगर पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो आपने क्या करना है, आपकी जो स्लाइड्स होंगी उसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्लाइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है और आपको जो है उसमें टेक्स्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक चीज याद रखें, अवॉइड डिटेल्ड या कंप्लीट या बड़े बड़े जो हैं ह्यूज सेंटेंसेस की फॉर्म में ना लिखें। जितना कम टेक्स्ट होगा और जितना विजुअल ज्यादा होगा, यानी इमेजेस के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू समझाएंगे, डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे, उतना वो बेटर होगा, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को भर भर के नहीं लिखना, आपने बहुत लेस टेक्स्ट डालना है। यूज बुलेट पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ। आप पैराग्राफ ना यूज करें, आप बुलेट पॉइंट्स दें कि ये मेन है और ये उसके बाद ये बुलेट्स हैं, 2-3-4 जो बुलेट पॉइंट्स आपने देने। बहुत ज्यादा हैवी और टू मच टेक्स्ट
जो है ना वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू अवॉइड दैट। और जैसे मैंने कहा कि गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन दें, इमेजेस डालें। और एक चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो इमेजेस आप यूज करेंगी वो बहुत ज्यादा इस तरह के ना हो कि क्लैरिटी ना हो उसमें, या उनकी जो है वो पिक्सल फट जाएं, या उनकी कोई मैग्निफिकेशन ठीक ना हो, रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन ना हो। यू हैव टू गो फॉर वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज, ठीक है। आपने जैसे लिखा होता है अक्सर के जी 300 डीपीआई या इतने डीपीआई का इमेज आपने इसमें लगाना है। अगर आपको इमेजेस सही नहीं है तो प्लीज डोंट पुट देम इन योर स्लाइड्स, उनको अपने स्लाइड्स में ना रखें, ठीक है, उनको ना यूज करें। जब भी यूज करें कोई इमेज, वो आपने बहुत हाई क्वालिटी का अच्छा इमेज जो है वो यूज करना है, ठीक है। और क्लटर नहीं करना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो इनकंसिस्टेंट है उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि बहुत मिनिमलिस्टिक आपका डिजाइन होना चाहिए आपकी स्लाइड्स का भी, बहुत ज्यादा टू मच डाटा और बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन वो नहीं, ठीक ठीक है। बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं और ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह यूज करने हैं, पिक्चर्स यूज करने हैं, क्योंकि नेचर बहुत पसंद आती है सबको। क्यों? क्योंकि नेचर में बहुत सारे कलर हैं, कलरफुल है, तो कलरफुल स्लाइड्स भी अच्छी लगती हैं। अगर उसमें कोई ग्राफ्स या कोई पिक्चर्स हैं अच्छी, तो वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसलिए आपने बिल्कुल बोरिंग खाली, आपने ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट पे टेक्स्ट डाल रही हैं और स्टेटमेंट्स दे रही हैं और सेंटेंसेस दे रही हैं, ठीक है, उसको नहीं देना आपने, ठीक है। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन चीजों को आपने ख्याल रखना है। जो आपके स्लाइड का डिजाइन है, मैंने आपको बताया कि विजुअल इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स जो हैं वो आपकी बहुत क्लीन होनी चाहिए, अनक्लटर्ड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टू मच इंफॉर्मेशन, क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजों को डंप कर दिया आपने इकट्ठा, ठीक है। और बहुत अच्छे हाई क्वालिटी इमेजेस आपने यूज करना है, ठीक है। डाटा अच्छी तरह विजुअलाइज होना चाहिए, ऑडियंस कैन इजीली अंडरस्टैंड और क्विकली अंडरस्टैंड, इस तरह का डाटा आपके पास होना चाहिए। और जो इमेजेस हैं आपके, वो इंटरेस्टिंग हो, वो रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप हाई रेजोल्यूशन इमेज भी डाल रही हैं, आप मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन वो ज्यादा आपके टॉपिक के साथ मैच नहीं हो रहे। सो जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी ऑडियंस क्या है और किस तरह से हाई क्वालिटी इमेज और आपकी प्रेजेंटेशन उनके साथ अलाइंड होगी, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट डेवलप कर सके आप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन प्रेजेंटर एंड ऑडियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका इफेक्टिव डिजाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप पावर पॉइंट में नहीं दे रहे, देयर मेनी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें पावर पॉइंट क्लासरूम में यूज उस तरह से फ्रिक्वेंटली नहीं होता, आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। सो इवन इन दैट केस, इवन इफ यू आर यूजिंग ब्लैक बोर्ड और इफ यू आर यूजिंग व्हाइट बोर्ड, in that case as well you can go for very beautiful diagram, और आप बहुत अच्छी सी कोई पिक्चर डायग्राम या कोई ग्राफ बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग कलर मार्कर्स या कलर जो चॉक्स होते हैं, तो उनसे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और आप पूरा पैराग्राफ बोर्ड पे लिखने की बजाय यू कैन जस्ट राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स, आप बुलेट पॉइंट्स को लिखें वन बाय वन करके, सो दैट वुड बी ग्रेट, और उससे आपकी बड़ी अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि हमारी एक टीचर थी जो सबसे बेस्ट हमें लगती थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वो क्लासरूम में पहले जाती थी, कोई 15 मिनट पहले जाती थी और जाके पहले बोर्ड को बहुत खूबसूरत तरीके से सेट करती थी। उसके ऊपर वो जो डायग्राम बनानी होती थी वो सारी, वो बॉटनी की टीचर थी तो वो प्लांट का पूरा बनाती थी, उसके सारे पार्ट्स को डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई करती थी और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स लिखती थी। तो जब वो डायग्राम पे जो टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, तो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पहले जाके बनाती थी। जब तक हम जाते थे वो बना चुकी होती थी। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की चीज है जो आप बच्चों के सामने नहीं ड्रॉ कर सकते, या इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड और आपको लगता है कि ये आप भूल जाएंगे या इसके कोई पार्ट्स मिस हो सकते हैं, इन दैट केस आप पहले जाके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं तो दैट इज वंडरफुल, आप पावर पॉइंट पे वो स्लाइड्स ऑलरेडी जो है वो डायग्राम बना के डाल सकते हैं और उसको बहुत क्लियरली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आइदर यू आर वर्किंग विद मल्टीमीडिया और विद व्हाइट बोर्ड और विद द ब्लैक बोर्ड। डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी पहले भी बता दिया आपको, क्लैरिटी होनी चाहिए। और आप ऐसा नहीं है कि एक ही जगह खड़े होके आपने 2 घंटे का लेक्चर दे दिया,
विदाउट एनी पेसिंग, विदाउट एनी पॉज। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से पॉज भी लें, थोड़ा सा मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत रैंडम या एब्रप्ट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कि इतने ज़्यादा मूव करें कि किसी को समझ ही ना आए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे जो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बात करने आए, तो उन्होंने देखा कि जी मूवमेंट होनी चाहिए, सो दे वर मूविंग सो मच कि वो इतना ज्यादा अपने हाथों को खुद मूव कर रहे थे, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा बीच में जाएं, क्लास के एंड पे जाएं, फ्रंट पे खड़े हों, स्टूडेंट्स के पास जाके इंटरेक्ट करें, बोर्ड पे लिखें। सो एक बैलेंस्ड वे में जो है वो आपकी पॉजिंग होनी चाहिए और पेसिंग होनी चाहिए। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बॉडी जेस्चर जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप का अपने स्टूडेंट्स के साथ या जिस फॉरम पे भी आप हैं, आई कांटेक्ट, डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। और एक अच्छा जेस्चर और पॉजिटिव जो पोजीशन है और मूवमेंट है, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपने देखना। ऐसा नहीं है कि आपने सर पे स्कार्फ लिया तो वो नीचे गिर गया, फिर आपने ऊपर लिया फिर गिर गया, या आपने पॉकेट्स में हाथ डाले हैं, आप वो हाथ पूरा 1 घंटा पॉकेट्स में ही रहे हैं। सो कुछ भी इस तरह का ना करें जिसमें आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन होगी और ज्यादा जो है वो आसानी से नजर नहीं आएगा, या ये फील नहीं अच्छा होगा। तो पोस्चर जो है आपका, जो बॉडी जेस्चर है और जो आई कांटेक्ट है, वो बहुत आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ड्रेसिंग एक ही दफा अच्छी करके आए, क्योंकि जब अच्छी ड्रेसिंग आप करते हैं, वो पिन अप कर लें, अगर कोई चीज आपके पास है, आपको लगता है गिरेगी सर से या वैसे, तो उसको पिन अप करें और इस तरह की ड्रेसिंग करें आप। क्योंकि जब हम अच्छा ड्रेसअप होते हैं, ये दिस इज एक्चुअली द ह्यूमन नेचर, कि जब आप अच्छे लगते हैं तो आप अच्छा बोलते भी हैं। ये आपको आपकी पर्सनालिटी में वो चीज आपके फेस से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जब आप अच्छा किसी दिन तैयार होके हम जाते भी हैं तो वो वी कैन फील इट। ठीक है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है, आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। तो इसलिए द प्रॉपर ड्रेसिंग, आई कांटेक्ट और पोजीशन जो है वो बहुत जरूरी है। इवन योर टोन, जो वॉइस की है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और इंटरेक्शन, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आपने लेक्चर दिया और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं किया, आप सिर्फ बोर्ड से देख देख के प्रेजेंटेशंस बोलते गए। नो, यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ताकि वो आप देखें कि वो आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जब लेक्चर देती हूँ तो कुछ देर के बाद मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि अच्छा मैंने अभी क्या कहा, आप बताएं मुझे, या आप बताएं, या आप डिस्कशन का पार्ट बने, या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताएं, या कोई वाकया इस तरह का सुनाए जिसमें उनको इन्वॉल्व किया। स्टोरी टेलिंग समटाइम्स विच इज रेलिवेंट, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कुछ टाइम में आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गिव देम कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आप उनके साथ जो है वो रिलैक्स है और वो भी आपके साथ जो है दे कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ बॉन्डिंग और हेल्दी कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इतना प्रेपरेशन करके आए, क्योंकि जब हम प्रिपेयर नहीं होते तो हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वो रैंडमली निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। तो वो ना हो आपकी प्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले भी कहा कि घर में आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप वॉइस की प्रैक्टिस करें। आप अब तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग की अलग करें, विजुअल की अलग करें, प्रेजेंट करके अलग करें आप, और अलग से अपनी वॉइस की भी करें कि उसकी टोन क्या है। क्या कभी आपकी वॉइस हल्की होती है, कभी तेज होती है, कि एक ही टोन में तो नहीं आप 2 घंटे का लेक्चर दे रहे। ठीक है, सो उसको भी रिकॉर्ड करके बार बार सुने। ठीक है, दैट इज वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, उसको जरूर प्लीज देखें। ठीक है, और ब्रीदिंग टेक्निक्स कि किस तरह से आप कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर आप कहीं प्रेजेंट करना जाना चाह रही हैं तो क्या आपकी हैबिट है, क्या अगर आप 5 मिनट पहले पहुंच जाएं उस जगह पे और आप वहां पे रिलैक्स हो जाएं, तो क्या आप ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकती हैं? क्या उससे पहले आप कोई लाइट सी एक्सरसाइज करें तो आपका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हल हो जाता है? क्या ऐसा आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में है जिससे वो जो है बेहतर हो जाएगा? ठीक है, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो आपको आप यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक हो गया, और क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, देन यू विल बी एबल टू हैंडल योर क्वेश्चंस इन अ वेरी गुड वे। ठीक हो गया जी। स्पीकिंग स्किल्स में क्या आपके पास होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल्स। जो जितना अच्छा रीडर होता है वो उतना ही अच्छा स्पीकर भी होता है। सो रीड मोर, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें,
मैंने जब यूके में थी तो मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस ली, जिसमें प्रोनाउंसिएशन पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, स्पीकिंग स्किल्स पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काफ़ी सर्टिफिकेशंस मैंने यूके से की। और वहाँ पे भी यही था कि जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो आपके यही स्किल्स चेक करते हैं। आपको बार-बार फ्रंट पे खड़ा करते हैं और आपसे कहते हैं कि डिस्कस करें, बोलें, ठीक है? तो और आपकी प्रेज़ेंटेशन को देखते हैं कि आपने कैसी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है कि आप एक रातों-रात आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएँगे। इट्स अ स्लो लर्निंग प्रोसेस और इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और 1 या 2 दिन में ऐसा नहीं होता। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं, ताकि उतना अच्छा जो है आपके पास कलेक्शंस ऑफ वर्ड जो है वो आपके पास उतने ज़्यादा आ जाएँ। जितने ज़्यादा वर्ड्स आएँगे उतना अच्छा आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग योर प्रेज़ेंटेशन आप अपनी स्पीकिंग को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? तो गुड स्पीकिंग स्किल्स जो होते हैं ना, वो बताते हैं आपको कि किस तरह से आप अच्छा इन्फॉर्मेशन को किस तरह से बेटर वे में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और उसमें ग्रामर का, वोकैब्युलरी का, इडियम्स का, इन सब चीज़ों का, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं आइडियाज़ के, इनका यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज़ पॉइंट्स एज़ वेल। बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले भी कहा कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हाट यू नीड टू डू इज़, ऐसा नहीं है कि हाथ बाँध के 2 घंटे आप खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हाथ रखा, 2 घंटे खड़े रहें, हाथ में पेपर है तो 2 घंटे पेपर पकड़ के उसी पोज़ में खड़े रहें, या पॉकेट्स में हाथ डाल के तो आप खड़े हैं और 2 घंटे पॉकेट्स में ही हाथ है और आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना करें, ठीक है? एक प्रॉपर वे में आप बात करें, थोड़ा-सा पॉज़ भी लें, ठीक है? दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो बॉडी लैंग्वेज दिस इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्या है, आपके पास उसमें आप क्या करते हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। आई मीन उसमें आप जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, आपके हाथों के जो एक्सप्रेशन है, आपके खड़े होने का जो स्टाइल है, जो आपकी मूवमेंट्स हैं, इवन आई कांटेक्ट है, आई मूवमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये उसमें आप इसको ख़्याल रखते हैं, ठीक है? तो दीज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप वर्ड्स की फॉर्म में नहीं कर रहे। आप किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, अपने जेस्चर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो उन जेस्चर को जो है वो बहुत हम्बल रखें और बड़ा अच्छा रखें, ताकि आपके और फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे ना रखें कि आप गुस्से में हैं या कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। सो ये आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सो दीज़ थिंग्स इन फैक्ट some researchers conclude that non-verbal communication accounts for the majority of information transmitted during interpersonal interactions. तो इसको बहुत important समझा जाता है। Your body language is very much important. So please keep an eye, especially on your body language. ठीक है? इस पे बहुत ज्यादा जोर देना है आपने। अच्छा जी, प्रैक्टिसिंग योर प्रेजेंटेशन। मैंने आपसे कहा आप मिरर के आगे खड़े हो जाएं। आपको अगर समझ नहीं आती कि जी मैंने क्या करना है, या मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं मुझे बहुत बड़ी गैदरिंग के आगे आई हैव टू स्पीक, तो आप क्या करें, आप प्रैक्टिस करें इसको। आप अपनी कोलीग्स के सामने रिहर्सल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। फिर मैंने आपसे कहा अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और प्रैक्टिस करें, और उसको देखें कि कहाँ वर्ड्स आप ठीक नहीं प्रोनाउंस कर रही, कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सो रिहर्सिंग योर प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और टाइम जो स्लॉट मिली है, कोशिश करें कि उसके अंदर रहें। कुछ जगहों पे इसके मार्क्स होते हैं, कुछ जगहों पे जब आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ जगहों पे प्रेजेंट किया और बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड्स भी रिसेंटली मुझे कैम्ब्रिज से मिला, तो उसमें ये होता है कि एक चीज नहीं काउंट होती। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो वो काउंट होगा। आपका अच्छा कंटेंट भी काउंट होता है, आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी काउंट होती है, ठीक है? और टाइमिंग भी काउंट होती है कि सबको एक जैसी टाइमिंग मिलेगी। तो वो बेल कर देते हैं, उसके बाद आपको यू हैव टू स्टॉप। तो आपको अपना आइडिया पूरा जो है वो देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन को आपको कंक्लूजन तक ले जाना पड़ता है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है? और कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है?
सो और मैंने आपको कहा कि रिकॉर्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, और प्रैक्टिस इट। और जो मॉक प्रेजेंटेशंस हैं वो आप दें, उससे आपको अंदाजा होगा, फीडबैक लें, अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हैं, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, कोलीग्स को, तो आप डिफरेंट टाइप में मॉक प्रेजेंटेशंस दें। सो आप उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, और आपकी जो गलतियां होंगी, जो मिस्टेक्स होंगी, यू कैन हैंडल दैट वेरी वेल in your actual presentation, ठीक है, so that's important। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आपने स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उसका स्टार्टअप लिया है। एक चीज याद रखें, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू, जो मैं करती हूँ आप भी कर सकती हैं, यू शुड नोट डाउन दिस थिंग। स्टार्ट पे फोकस करें, स्टार्ट बहुत अच्छा लें, बहुत मेहनत करें स्टार्ट पे। अगर आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा ना, तो ट्रस्ट मी आपका एंड भी अच्छा होगा और आपका कंटेंट भी अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये रियलिटी है, स्पेशली इन केस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। योर ऑडियंस आपको जो है ना, दे कैन एक्सेप्ट यू, ठीक है, एज अ गुड प्रेजेंटर, अगर आप स्टार्ट अच्छा लेते हैं। आप स्टार्ट में, और स्टार्ट की यू नीड टू प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस, रिहर्सल करें। अगर आपको लगता है कि आपको आप नहीं बोल सकते, तो 2-3 लाइनें जो है वो आप उसकी रिहर्सल भी बार बार कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट में, ताकि स्टार्ट का एक अच्छा फ्लो होगा पहले 2-3 मिनट का। तो आपकी आप और जब आप स्टार्ट पे अच्छा बोलते हैं तो यू एक्चुअली गेन कॉन्फिडेंस एज वेल। जब आपका स्टार्ट अच्छा होता है तो आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट अप योर ओन कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने आप को मार्जिन देने के लिए आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो इसको अपना जो है ना ये लिख लें कि यू हैव टू वर्क हार्ड। आप कोई क्लास लेने जाएं, आप कहीं प्रेजेंट करने जाएं, प्लीज पूरी अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, नो डाउट, लेकिन स्टार्ट जो है उसकी थोड़ी सी ज्यादा रिहर्सल करें, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे मूव कर सकें। और आपकी जो एंगेजमेंट है वो आपकी ऑडियंस के साथ थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट रही है उसके बाद आप बोली जा रही हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और कई दफा ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन भी होती है, सो यू हैव टू मैनेज इट वेरी पोलाइटली, ठीक है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, और ताकि आपका अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो, ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन सारी चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब आफ्टर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जब आपने दे दी है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना ये सोच के कि अच्छा मैं क्यों पूछूं, कैसे पूछूं। प्लीज कलेक्ट फीडबैक। अगर तो आपका क्लासरूम है, स्पेशली योर स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज कलेक्ट योर फीडबैक फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ा रही हैं और आफ्टर 1 मंथ आप उनसे एक फीडबैक ले लेती हैं विदाउट देयर नेम, आप उनसे कि अपना नाम ना लिखे, एक पेज पे आप वो लिख के दें कि कोई ऐसी चीज लेक्चर के दौरान या आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान उनको नहीं समझ आई, या आपको स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, तो प्लीज वेरी फ्रैंकली वो उस पर मेंशन करें, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, जब आप उनसे फीडबैक लेंगी, ट्रू रियल फीडबैक, तो उसका फायदा क्या होगा, सबसे ज्यादा आप उसको पढ़ेंगी तो आफ्टर 1 मंथ आपका सेमेस्टर के जो बाकी 3 महीने 4 महीने रहेंगे, आप उसमें थोड़ी सी केयरफुल हो जाएंगे। मैं खुद ऐसा करती हूँ। आप प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या ये चीज उनको नहीं समझ आती, तो आई हैव टू चेंज माय स्टाइल। या मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू है स्टूडेंट्स को, तो मुझे थोड़ा सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है। अगर सिंप्लिसिटी ज्यादा है तो मुझे थोड़ा सा चीजों को डेप्थ में एक्सप्लेन करना है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो प्लीज फीडबैक जो है उसको जरूर लें, एंड दैट इज योर फॉर योर ओन बेटरमेंट, ठीक है। वो बेशक किसी को ना दिखाएं, लेकिन वो फीडबैक आपके पास हो, आप उस फीडबैक को लेके यू कैन इम्प्रूव डे बाय डे, or at the end of the day you would feel the major difference in your personality as well. So they would highly, I mean I would highly recommend कि आप feedback जो है उस पे काम करें, ठीक है। Reflecting on your performance, identifying strength and areas of improvement, please be open, be confident, be positive, और इस पे काम करें। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिहर्स, और यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और अपने गोल्स को, फ्यूचर गोल्स क्या है,
उसको सेट करें, ठीक है। दैट इज फॉर योर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि अगर आज इतना है तो मुझे फ्यूचर में इतना आना चाहिए, ठीक है। उसको इंप्रूव करें। जैसे आज की प्रेजेंटेशन आप ले रही हैं, तो प्लीज नोट डाउन अ कपल ऑफ पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैं ये करती हूँ लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एनहेंस कर दूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो प्लीज उनको नोट करें। अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन में से कोई 5 से 10% भी पॉइंट लिख के उन पे काम करती हैं, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो सो स्टिक विद अ फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि आप स्टिक कर सकती हैं, लेकिन उन पे प्लीज वर्क ऑन देम राइट नाउ, ठीक है। आप उसको स्टार्ट कर दें आज से, ठीक है। उसको नोट डाउन करें, उसको स्टार्ट करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो है वो आपके अंदर वो एबिलिटीज जो है वो इनकलकेट हो, और आप ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सके, प्रेजेंट कर सके, ठीक है। फॉलो अप, मैंने आपको बताया, फॉलो अप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इंफॉर्मेशन भी देना, ईमेल की, सोशल मीडिया की, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की, और रेफरेंसेस, these are also very much important. So these things are very much important and you have to give them, ठीक है। आपने उनको रेफरेंसेस फॉर द रीडिंग मटेरियल, सोशल मीडिया, ईमेल, ये सारा देना है। जैसे मैंने आपको आज अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया, सो यू कैन सी, ठीक है। तो ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब लास्ट में क्या है जी, फ्लॉज क्या है इन प्रेजेंटेशन। हमारी प्रेजेंटेशन में क्या फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। यही कि ऑर्गेनाइज सही नहीं किया हमने, अच्छे से लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, हमने अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर नहीं किया अपनी प्रेजेंटेशन को। जो मैंने शुरू में कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन इन अ वेरी गुड वे। कैसे करना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी, जो क्लटरिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा चीजों को सेंटेंसेस की फॉर्म में प्लीज आपने डंप नहीं करना, ठीक है। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आपने अच्छे तरीके से डालनी है। पुअर इमेजेस नहीं डालने, विजुअल इमेजेस जो कि बिल्कुल क्वालिटी जिनकी बेकार है, वो बिल्कुल आपने जो है यूज नहीं करने। यू हैव टू अवॉइड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पुअर विजुअल डिजाइन और इमेजेस। और अगर प्लीज इनएडिक्वेट प्रेपरेशन जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या प्रेजेंट करना है, आपकी प्रेपरेशन नहीं है, सो यू कांट do better, you can't go for a very good effective presentation, ठीक है। आप नहीं जा सकते। आप if you are unable to handle question and answer, unclear takeaways, आपको ये नहीं पता कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पे या एट द एंड ऑफ द कोर्स और एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट इज एक्चुअली द मेन पॉइंट और कंक्लूजन या कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं या टेकअवेज क्या है, अगर आपको नहीं पता, ऑडियंस का नहीं पता, ठीक है, कि कौन सी ऑडियंस है, एंगेजमेंट बड़ी लो रही है, आपने ऑडियंस से कुछ पूछा ही नहीं, कुछ ना कोई क्वेश्चन ना कोई बातचीत ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, मोनोटोन डिलीवरी, एक ही टोन में विद द सिमिलर टोन, विदाउट द हाई पिच, लो पिच, विदाउट द चेंज इन टोन एक्सप्रेशन। आप एक ही जगह खड़े होके एक ही टोन में आप पूरा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, द होल प्रेजेंटेशन यू हैव डिलीवर्ड इन जस्ट वन टोन। तो एक खास, दिस इज दैट इज एक्चुअली द ह्यूमन नेचर, कि आफ्टर सम टाइम वो चीजें एब्जॉर्ब होना खत्म हो जाती हैं। जब अगर उसकी पिच चेंज ना हो, अगर उसकी वॉइस चेंज ना हो, अगर उसकी टोन चेंज ना हो, ठीक है, अगर पोजीशन चेंज ना हो, सो प्लीज वर्क ऑन दैट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा जी, इसी के ऑपोजिट होगा वाइस वर्सा, जो सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होगी उनमें इन सारी चीजों का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। मैं फिर भी दिखा दूं आपको। तो सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, एंगेजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस आपने यूज करने हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इंटरेक्शन विद ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडेप्टेबिलिटी की बात की थी, according to your audience you have to be adaptable, adaptability of changes is very much important। आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस के हिसाब से आप अपनी बात को कैसे कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी टोन, अपनी बात, अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल, दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइम constraints you have to respect, clear and concise language is very much important। आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
whatever the language you are using, either उर्दू, आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रही हैं, इंग्लिश है या कुछ भी आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो डिफरेंट टाइप की है, या कोई इंटरनेशनल ऑडियंस है और आपने उसके लिए इंटरनेशनल कोई लैंग्वेज यूज करनी है, सो यू नीड टू रिहर्स, ठीक है, यू हैव टू पहले से उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ऑडियंस के हिसाब से लैंग्वेज भी प्रैक्टिस करें, स्ट्रॉन्ग समराइजेशन एंड कॉल टू एक्शन, ठीक है, एंड पे आपको पता हो कि किस तरह से आपने समराइज करना है, समरी क्या है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसको समराइज करें कि व्हाट इज द कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, तो जो मुझे चीजें मेन लगती हैं कि आपको आनी चाहिए वो ये है। एक तो फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये यू हैव टू नोट डाउन। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हमने आप पीछे पढ़ी हैं, वो सारी करनी चाहिए, आपकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन फीडबैक जो है वो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। सो एक्टिवली सीक फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस, peers एंड mentors टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी एनालाइज योर पास्ट प्रेजेंटेशंस। अब आपने एक प्रेजेंटेशन दी और ये याद रखें कि वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, और देखें मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा कोई वीक पॉइंट रह गया, या हमें ऑडियंस बता देती है, या हमें फीडबैक बता देती है, ठीक है, तो उस सूरत में इन दैट केस अगर आपकी स्ट्रेंथ है, आप ये देखेंगी, उनसे सीखें, जो आपकी पास्ट प्रेजेंटेशंस है उन पे माइंड करने की बजाय या उन पे आपको थोड़ा सा एंजाइटी या परेशान होने की बजाय आप क्या करें, उनको सोर्स बनाएं, किसका, लर्निंग का, दैट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लर्निंग। तो अपनी वीकनेसेस को अपनी क्या बनाना है, आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और अपनी मिस्टेक जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड प्रेजेंटर इंशाल्लाह, एंड यू विल बी इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आप इन चीजों को देखते हैं। और प्लीज, मैंने आपको पहले भी बताया, वी कांट डू एनीथिंग इन वन डे, वन मंथ और वन ईयर, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इट्स अ वेरी स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सक्सेस है, जो लर्निंग है, जो प्रेजेंटेशन है, जो एबिलिटीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो कैसे होती हैं, हम अडेप्टेबिलिटी ऑफ दैट क्वालिटीज जिनको हम इनकलकेट करते हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस। और हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस each and every day regularly। थोड़ा करें लेकिन रोज करें। आज भी जो प्रेजेंटेशन आपको दी है, इनमें से कुछ चीजें पॉइंट आउट कर लें, लेकिन प्लीज वर्क ऑन दैट थिंग्स, ठीक है, उसकी रिहर्सल करें, एक पॉइंट ले लें, दो ले लें, लेकिन यू नीड टू, अगर आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगी, तो उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, उतने अच्छे आपके स्किल्स हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, whether delivering full presentation or working on any skills, any specific type of skills, is actually the key towards mastery। अगर आप, if you want to be the master in your subject, ठीक है, in your course, in your field, तो आपको क्या करना है, practice that regularly, that is very much important, ठीक है। So these are my recommendations for you all, so please work on these recommendation, they are very much important, ठीक है। These are couple of references जिनको आप देख सकती हैं बाद में। और now बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टेक अवे है वो ये है कि जो मैंने पहले नहीं बताया और जो मैं करती हूँ, जिसकी वजह से काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले बेस्ट प्रेजेंटर के, एचईसी से भी और इंटरनेशनल भी, वो ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप स्टेज पे जाके खड़ी हों, रोस्ट्रम पे खड़े हों, या क्लास की फ्रंट पे खड़े हों, या किसी बोर्ड के सामने खड़े हों, या किसी ह्यूज कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल फोरम पे खड़े हों, तो बस ये सोच लें, यू हैव टू, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल डेफिनेटली स्टार्ट बिलीविंग इन यू। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट इन अ वेरी बेटर वे, और मैं ही कर सकती हूँ इंशाल्लाह, विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड, तो आप उतना अच्छा, दैट कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर बिल्डअप होता है ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन को मजीद अच्छा कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है ब्यूटीफुली आपके वर्ड्स को। सो प्लीज इस चीज को जाने कि यू आर द बेस्ट, ठीक है।
and you can perform the bestest of the best. Okay, so thank you very much. Now if you have any question, I'm happy to answer now. हैंड रेज करें। इजाद हुसैन, आपका माइक ऑन है। एहतशाम जफर, आपका माइक ऑन है। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। मैं सवाल भी करता हूँ, एंड बिफोर माय क्वेश्चन मैं थैंक यू करना चाहूँगा मैडम अफरोज को फॉर मॉडरेटिंग और पीएलटी, बहुत अच्छे अंदाज में ये लेके चली हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट डे है, तो थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा मैडम, हम बीएस में पढ़ाते हैं और यहाँ पे सेशनल्स में हम जो मार्क्स है उसको डिवाइड करते हैं प्रेजेंटेशन में और क्विज में। तो अगर मैंने प्रेजेंटेशन में के 10 मार्क्स रखे हुए हैं तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूँ इस चीज़ को कि उस मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा वेटेज मैं किसकी रखूँ प्रेजेंटेशन में, सो दैट कि जो 10 मार्क्स हैं उसमें हमने क्या क्या स्टूडेंट के हवाले से देखना है, जज करना और फिर उसको मार्क्स अवार्ड करने हैं। जी मैडम। जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द लवली ऑडियंस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा बात करके। अच्छा, उसमें ये है कि इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस एज वेल। अगर मुझे कहेंगे कि मुझे 10 नंबर मिले हैं और मैंने अपनी क्लास को वो देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो मैं क्या करूंगी कि मैं पहले से डिफाइन कर दूंगी, क्लास को बता दूं, क्योंकि इस लेवल पे बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं पता होता हर स्किल्स को एकदम से एक लेक्चर में 2 लेक्चर में वो इनहेंस नहीं कर सकते। फैकल्टी तो फिर कर सकती है, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगी, मैं उनमें से, जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन खत्म की तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन आपको नहीं कहा कि ये सारी चीजें फोकस, मैंने बताया कि ये 4 चीजें एंड पे मैंने बताया कि एज अ प्रेजेंटर अगर आप इन 4 चीजों को पकड़ लें, ठीक है, एक फीडबैक को पकड़ लें, मैंने आपको एंड पे बताया। तो मैंने जो 4, और प्रैक्टिस करें अच्छी प्रेजेंटेशन की, मैंने आपको 4 चीजें बताई कि अगर मैं आपको कहूंगी कि इन सब में से पहले किस चीज को करें, तो दीज 4 आर इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स को मैं क्या करूंगी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटीज ऑफ योर स्टूडेंट, आपको पता होता है कि ये किन चीजों को कर सकते हैं और कुछ चीजें इनके इख्तियार में फिल वक्त नहीं है। तो आप क्या करें, यू हैव टू चूज 2 और 3 थिंग्स, मेजर थिंग्स, उनमें से, पूरी में से 10 नंबर की, कि 3 नंबर इसके हैं। सपोज आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई जाएगा तो वो तो बोल ही नहीं पाएगा, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के नंबर रखें। आप कहें कि जो जाहिर है, जो जितनी ज्यादा रिहर्सल करेगा उतना ही उसका कॉन्फिडेंस बेटर होगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, प्योरली ऑन यू। आप उनमें 3-3 या 2-2 नंबर का पहले ही उनको वो दे दें, एक 1 पेजर, और उनको कहें कि ये 5 चीजें हैं जिनमें मैं आपके नंबर आपको दूंगा। तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर कहूंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है। अब फर्ज करें आपकी क्लास के बच्चे जो हैं, आपकी क्लास के बच्चे, सपोज आपकी क्लास के बच्चे जो हैं वो कंटेंट में बहुत अच्छे नहीं हैं, और शायद उसको अगर आप सबके कंटेंट को देखना शुरू करें कि मैं नंबर कंटेंट के दूंगा मेजर, तो हो सकता है कि बच्चा पहले आके बोलने इस काबिल नहीं है कि वो आके बोल ही ले उस जगह पे 1 मिनट। तो वो कंटेंट तो बाद की बात है। तो पहले इसका मतलब है कि यू नो योर स्टूडेंट्स, यू नो योर ऑडियंस वेरी वेल, उसका लेवल। अगर फैकल्टी ऑडियंस है तो हम उसको कंटेंट के नंबर देंगे, हम उनको उन चीजों के, बॉडी लैंग्वेज के, हम उन चीजों के नंबर देंगे जो हमें लगता है कि हाईएस्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको फिर छोटी छोटी चीजों के मार्क्स रखने होंगे, ठीक है। टाइम के मार्क्स रख लें, स्टूडेंट्स हैं तो इस टाइम में 3 मिनट में जो कंप्लीट करेगा और कंक्लूजन तक पहुंचेगा उसको मैं 2 नंबर दूंगा। जो पहले 2 मिनट या 1 मिनट बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन सबसे खूबसूरत देगा, मैं उसको 2 नंबर दूंगा। यानी मेरे लिए तो ये है कि मैं अपनी क्लास के हिसाब से वो नंबर डिवाइड करके पहले ही बता देती हूँ कि जी ये 10 नंबर है,
और ये मैंने पोर्शन खुद आपकी क्लास के हिसाब से कर दिए। सो यू हैव टू स्टिक विद दीज 4 थिंग, क्योंकि अगर आप उनको ये मार्जिन दे देंगे ना कि भाई जाओ करो, मैंने नंबर अपने लिहाज से 10 में से देने हैं, तो ये होने नहीं लगा। वी नो इट वेरी वेल। आई होप कि आपको Thank you. जो है वो जी समझ आई है। exactly, exactly. Thank you very much for the guidance, madam. वेलकम जी, वेलकम। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? गुलाम शबीर आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम जी, क्या शबीर हाल है, बात कैसे कर हैं रहा आप? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया मोहम्मद शरीफ कॉलेज। जी जी, मैम कैसे हैं आप? साल के आपका इंतहाई खूबसूरत लेक्चर था, इंतहाई मालूमाती था। थोड़ा सा इजाफा कर दें अगर आप मुनासिब समझें तो। पीएचडी का जी बिलफर्ज जी, मेरा डिफेंस है पीएचडी, तो हम्म। क्या उसमें कुछ इजाफे आप क्या तजवीज़ करेंगी प्रेजेंटेशन के साथ साथ? अच्छा, अगर तो आपका पीएचडी का है तो मैं ज्यादा आपको कहूंगी कि आपका सबसे ज्यादा कमांड आपकी होनी चाहिए आपके फील्ड पे। यानी आपको सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा क्योंकि आप जाहिर आप फैकल्टी मेंबर हैं, ऑलरेडी यू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक वेरी वेल। लेकिन उस सूरत में ये होगा कि आप जो आपके कंटेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है ना, जो मैं भी जाती हूँ पीएचडी का वाइवा लेने, एग्जाम लेने, तो हम क्या देखते हैं कि जो थीसिस के चैप्टर्स हैं आपके आपके फर्ज करें आपके 5 चैप्टर्स हैं थीसिस के, उन 5 चैप्टर्स की क्लियर कट नॉलेज और गैप, किस रिसर्च गैप को आपने क्लियरली उसमें काम किया उस पे, और उसके क्या क्लियर कट रिजल्ट्स हैं, तो आपका ग्रिप आपके थीसिस पे अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स, जो आपने रिजल्ट्स डालने उस पे ग्रिप आपकी जो है, यानी कंटेंट पे जो ग्रिप है, जो आपने काम किया है उस पे थीसिस पे जो ग्रिप है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर कोई ग्राफ आपने उसमें डाल दिया है चैप्टर नंबर 5 में, तो मैं कहूंगी अच्छा चैप्टर नंबर 5 में ये ग्राफ आपने डाला, आप मुझे एक्सप्लेन करें, इसकी तो पीक यहाँ आती नहीं है, इसकी तो यहाँ आती है। तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो आपने डालनी है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या कौन सा रिसर्च गैप जिसको आपने यू आर फुलफिलिंग और आपने उसको कर लिया, और ये सारा कुछ आपने किसके लिहाज से करना है, विद रेफरेंस टू योर टाइटल। आपका टाइटल, आपका रिसर्च गैप और आपके जो 5 चैप्टर्स हैं या जो जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं, दे शुड बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड यू शुड हैव ऑल दी क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट डाटा। तो मैं ये कहूंगी जितना वो डाटा अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे मार्क्स इस चीज के नहीं होते कि आपने कौन सा पहले बोला बाद में बोला, कौन सी लैंग्वेज यूज की, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, नॉलेज आपका जो है वो बोलता है। और एक मैं आपको टिप बता दूं, वो टिप ये है कि प्लीज पब्लिश एन आर्टिकल। अगर आपने आर्टिकल पब्लिश कर लिया अपनी प्रेजेंटेशन डिफेंस से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है उनका आंसर नहीं देना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है, योर डाटा इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। अगर एक से ज्यादा है, जैसे हमारे एक टीचर हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने कहा जी वो बाहर यूके की काफी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में वो गए और वहां पे उनको ये फील हुआ कि उनके साथ तो बाकी लोग तो बहुत अच्छी मुल्कों से आए हैं और बड़ी अच्छी उनकी है, तो मेरा क्या बनेगा, ये तो डिफेंस में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने अपने आखिरी 6 महीनों में सबसे ज्यादा फोकस अपनी पब्लिकेशंस पे डाटा किया और 10 पब्लिकेशन निकाले। उन्होंने कहा जब मैं अपने वाइवा के लिए गया तो आई ऑलरेडी हैव 10, इफ यू ऑलरेडी हैव 10 पब्लिकेशंस पब्लिश्ड इन वेरी ऑथेंटिक जर्नल, मैं आपके केस में 10 नहीं कह रही, एक दो, तो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क कि ये बच्चे ने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस ने आपके काम को ऑलरेडी दे हैव एक्सेप्टेड योर वर्क। तो ये एक की है। तो मैं तो कहूंगी कि जितनी जल्दी हो आप अपनी पब्लिकेशंस एक आधी दो निकालें, एंड दैट वुड बी द सेफ साइड फॉर यू। ठीक है, नॉलेज आपको होना चाहिए अपने फील्ड का, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल, एंड सेकेंड पब्लिकेशन। फॉर मी, मुझे ये लगता है कि इसमें आप बहुत सेफ साइड पे चले जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आइए। जी, मेरी आवाज आ रही?
आमिर इसाक, आपका माइक ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आमिर इसाक बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सलेटन गुजरांवाला से। मैम आपकी जी जी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब आपका जो लेक्चर था बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, स्पेशली जो नए टीचर्स हैं, स्पेशली यंग टीचर्स उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन कोई 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। तो आपने अपनी ना इनिशियल जो सेगमेंट था उसमें आपने थोड़ा-सा बताया कि एक बॉटनी की टीचर थीं, तो वो 15 मिनट पहले आके तो पूरा बोर्ड जो थी वो उस पे डायग्राम बनाती थीं। तो जी जी मैम इस हवाले से छोटी-सी मैं बात अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ना हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो कंसेक्टिव होते हैं सम टाइम। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और सम टाइम हमारी एक क्लास होती है वो एक ब्लॉक में है तो दूसरी दूसरे ब्लॉक में जाते-जाते 5 मिनट लग जाते हैं। अब हम्म, डेफ़िनेटली हम तो 15 मिनट पहले क्लास में नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना? तो दूसरा जो है ना ठीक हो गया। वो बच्चों को जो आपने कहा ना कि वो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्पेशली मैं भी शेयर करना चाहूँगा यंग टीचर्स के साथ कि जो जी फीडबैक जी है आपका और स्पेशली हम्म, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत काउंट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं आपकी प्रेज़ेंटेशन के हवाले से। तो बच्चों से पूछना ज़रूर चाहिए 1 लेक्चर, 2 लेक्चर के बाद कि हम्म, आपको पावर पॉइंट्स की स्लाइड से ज़्यादा समझ आती है या व्हाइट बोर्ड पे प्रेज़ेंटेशन से ज़्यादा समझ आती है और इवन यानी ड्यूरिंग लेक्चर मैं डायग्राम बनाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर है या लेक्चर से पहले डायग्राम बनाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सम टाइम बच्चे जो है ना उनका जो माइंडसेट होता है वो किसी और तरह से होता है क्योंकि मैंने बच्चों से सम टाइम ना इस तरह की बात पूछी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने बच्चे ने कहा कि सर ये जब टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, पोस्ट डॉक कर लेते हैं, तो वो बोर्ड यूज़ करना क्यों बंद कर देते हैं? तो उस पे मैंने कहा बच्चों सबका अपनी मेथोडोलॉजी होती है लेकिन आपको बच्चे टीचर्स को बताना चाहिए कि सर हमें इस तरह से ज़्यादा समझ आता है। सर मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी बात मैं जो आपसे पूछना भी चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था कि ड्यूरिंग जी जी लेक्चर अगर साथ-साथ डायग्राम बनाई जाए ना सम टाइम कुछ ऐसी डायग्राम्स होती हैं जो बनी हो तो बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे बनानी है। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेप से बनाना शुरू करते हैं ना तो बच्चा साथ-साथ आपको फ़ॉलो कर रहा होता है तो वो इतना अच्छा उसका मतलब उसको समझ भी आता है पूरा लेक्चर और ड्यूरिंग लेक्चर वो डायग्राम बनाना भी सीख जाता है। तो इस हवाले से मैं आपसे चाहूँगा कि दोबारा से ज़रा इस हवाले से ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, मैंने ये पहले इसलिए कहा बनाने का उन टीचर्स को कि जिनकी डायग्राम्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और वो स्टूडेंट्स के सामने अगर वो डायग्राम शुरू करते हैं और सपोज़ जैसे मैंने बताया कि वो जो बॉटनी की टीचर थी, उनकी वो लाइफ साइकिल प्लांट का और काफ़ी आपको अंदाज़ा होगा, उसमें काफ़ी सारे नाम और काफ़ी सारी चीज़ों को याद रखना और काफ़ी सारी उसकी वो बनाना, तो वो एक अच्छी खासी लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होती थी, लेकिन वो उसको छोड़ती नहीं थी। अगर वो उसी वक़्त वो बोर्ड पे डायग्राम बनाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा उस डायग्राम की एक-एक चीज़ को लेबल करने में, बनाने में और वो कलर्ड चॉक से बनाती थी और बड़ी मेहनत से बनाती थी। तो वो टाइम कंज़्यूम अगर आपका आधा उस डायग्राम में हो गया तो बच्चे बोर होते हैं। हाँ, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और आपको लगता है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मेरा ये स्टाइल रहा है। अभी तो हमारा यहाँ पे खैर पावर पॉइंट आ गया है, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया एफसी कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया एज़ अ लेक्चरर तो मैं साथ-साथ वहाँ पे व्हाइट बोर्ड होते थे, पहले ब्लैक थे फिर व्हाइट बोर्ड थे, तो व्हाइट बोर्ड पे जाके जो टॉपिक पढ़ाना है मैं कोई साथ नहीं लेके जाती थी, कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं। क्यों? जब आप यंग होते हैं तो आप में ज़्यादा एनर्जी होती है, आप ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लेक्चर को तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं। यानी आप में एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, भूलते नहीं जल्दी। एक ख़ास एज के बाद तो फिर आपको थोड़ी-सी ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई नोट्स हो। तो मैं जाती थी सिर्फ़ मार्कर हाथ में होता था और जाके डिफरेंट कलर्स के मार्कर और बोर्ड पे जाके वहीं से स्टार्ट लेती थी कि आज का लेक्चर का क्या नाम है, व्हाट इज़ एक्चुअली अगर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उसके बाद खुद लिखती थी कि अच्छा जी इसमें क्यों कर रहे हैं आज, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पढ़ेंगे, कंटेंट्स ये 6 चीजें हैं और 6 चीजों की हेडिंग एक-एक करके बना के विद डायग्राम में बताती थी। तो नथिंग इज बेटर देन दैट। ठीक है? दैट इज आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो उस सूरत में बजाय इसके कि वो बच्चों को दे देना कि खुद ही डायग्राम देख लो, खुद ही आप पढ़ लो, तो उससे सब बेहतर है कि हम पहले से वो तैयारी कर लें। या अगर पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट पे वो डायग्राम बनाई भी आ सकती है, तो उसको एक-एक पार्ट को पास जाके आप एक्सप्लेन कर दें। तो जो आपने कहा बिल्कुल दैट इज़ आई 100% एग्री के साथ-साथ आप अगर वो करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टूडेंट्स एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो साथ-साथ बनाते हैं और सीखते हैं। तो वो तो नथिंग लाइक दैट।
लेकिन इवन दो अगर ये नहीं पॉसिबिलिटी तो फिर भी आप वो डायग्राम या वो चीजें एक्सप्लेन जरूर करें, सेंटेंसेस ना लिखें बड़े बड़े, आप उसके थ्रू एक्सप्लेन करें, ठीक है? तो दैट वुड बी गुड, जो यंग टीचर्स हैं स्पेशली, क्योंकि उनमें दे आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह। और आज तो इट्स अ कंप्यूटर एज, एआई का दौर है, तो दे नो बेटर देन अस, तो माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह होपिंग और वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर हमसे बहुत आगे निकलेंगे और इन सारी चीजों को करेंगे इनकॉर्पोरेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। साजिद महमूद, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साजिद महमूद बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कसूर से। जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले तो दूसरे दोस्तों की तरह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा लेक्चर था आपका, बड़ी अच्छी तरह से आपने कंटेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया। आपके साथ जज़ाकल्लाह। साथ क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारी पीएचडी ट्रेनिंग सेशन का, तो मैम अफरोज का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे डीपीए डायरेक्टर अंसर अजहर साहब हैं, एचएडी, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऑनलाइन पीएचडी जो ट्रेनिंग सेशन है उसको कंडक्ट करवाया, और ऐसे लगा जैसे हम फिजिकली जो है ना वो चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे सारे प्रेजेंटर, सारे डॉक्टर, सारे जो डायरेक्टर्स आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ना चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैम क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जी जी। ये जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है ना वो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन स्किल है। और कम्युनिकेशन में हम जो इंग्लिश स्पीकिंग है इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पे मसलन हम पढ़ा रहे हैं, देहाती इलाके हैं और बच्चे भी जो हैं वो देहात से आते हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी सादा हो चुके होते हैं और हम भी उसी माहौल का ना ऐसा हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में हम ये जो स्पीकिंग स्किल्स है, ये जो लैंग्वेज बैरियर है, ये जो एक हेजिटेशन है दूसरों के साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की, इसको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? थैंक यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसमें यह है कि देखें, मुझे बड़ा विविडली याद है कि जब मैंने पिछली बार ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स पे प्रेजेंटेशन मैंने दी, तो थोड़ा सा मैंने इसका कम ख्याल रखा और मैंने काफ़ी, मेरी प्रेजेंटेशन जो थी वो आप समझ लें कि इंग्लिश में थी, यानी लैंग्वेज बैरियर शायद आया होगा, क्योंकि बाद में मुझे जो फीडबैक मिली उसमें मुझे किसी ने कहा कि आप बहुत क्विक बोल रही थी। क्विक से मुराद ये थी कि लैंग्वेज भी वो दूसरी थी और मैं थोड़ा सा तेज तेज बोल रही थी। तो मैंने उसका ख्याल रखा और इस बार जब मैंने प्रेजेंट किया तो मैंने कोशिश की, अगर आपको लगा हो कि मैंने वाकई कोशिश की है, तो मैंने कुछ चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन भी किया और मैंने उसको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया और मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में भी किया, ताकि अगर हर तरह की ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, किसी ऐसे कॉलेज से या किसी ऐसी जगह से कि जो अंडरस्टैंडिंग में कोई थोड़ा बहुत मसला है, क्योंकि मकसद खाली अच्छी प्रेजेंटेशन का ये नहीं होता कि आपकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो, या आपकी लैंग्वेज अंग्रेजी में आप कर रहे हैं तो आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है, नहीं। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस वेरी वेल, जो पहला पॉइंट है। तो अगर तो उसमें कामयाब हो गए। और हाँ, मुझे किसी ने ये भी कहा, मैं अपनी फीडबैक बता रही हूँ, कि आपने जो ज़्यादा, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, इट्स बीन मोर देन 23 ईयर्स नाउ, हम यूनिवर्सिटी में हैं और हम इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं और वहाँ ज़्यादातर इंटरनेशनल लोग होते हैं, तो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश बन जाती है प्रेजेंटेशन की, और हम जाहिर है डिफरेंटली वहाँ पे देनी होती है। तो मैंने और हम पावर पॉइंट के थ्रू देते हैं, हम हमेशा स्लाइड्स बनाते हैं, यूटी में स्लाइड्स चलती हैं, बोर्ड पे कम काम होता है, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं बाहर, वहां पे भी हम पावर पॉइंट पे देते हैं। तो पिछली दफा मुझे ये भी एक फीडबैक मिली कि मैडम, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे काम करते हैं या हम ब्लैक बोर्ड पे, हमारे यहाँ तो ब्लैक बोर्ड है हमारे कॉलेज में, तो उसमें तो हमें तो पावर पॉइंट नहीं मिलता, या हमारे पास तो वो मल्टीमीडिया नहीं है, तो हमारा जिक्र नहीं किया आपने। तो मैंने फिर कोशिश की आज कि मैं उसमें व्हाइट बोर्ड का भी जिक्र करूं, कलर मार्कर्स का भी जिक्र करूं, जो मैं करती थी
मैं खुद करती थी, और मैं ब्लैक बोर्ड का भी जिक्र करूं और मैं उन सब का। तो यू सी द बेस्ट प्रेजेंटेशन डज नॉट मीन कि इट शुड बी इन वन लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। प्लीज ये क्लियरली देख लें, आपने उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है जो आपकी ऑडियंस जिसको समझती है। हाँ, अगर तो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, अगर मजबूरी है कि क्लासरूम में इंग्लिश बोलनी है, सो यू कैन रिपीट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश एज वेल। उससे ये है कि आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी और आपको समझ भी आएगी। बाकी आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मैं तो ये करती हूँ कि छोटा छोटा 3-3 मिनट का स्टूडेंट्स को हम दे देते हैं। हर एक हमारा जो आप समझ रहे कोर्स होता है, उसमें 1 या 2 प्रेजेंटेशन मैं रखती हूँ स्टूडेंट्स की, और उसके अंदर मैं उनको कहती हूँ कि इसमें आपके मार्क्स होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, पहले क्वेश्चन आया था कि मैं इन 3 चीजों को देखूंगी मेजर। एक तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, उनको मैं कहती हूँ वो इंग्लिश होगा। वो क्यों इंग्लिश होगा, आपने अपना इंट्रोडक्शन जो 1 मिनट का या 1.5 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन है, एटलीस्ट वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, ताकि अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप किसी फोरम पे जाते हैं, वो ऐसा फोरम है कि आप उर्दू में नहीं स्टार्ट ले सकते, तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हुई हो। तो आप 3 मिनट की इंग्लिश में उनसे प्रैक्टिस करवाएं। उन 3 मिनट बहुत होते हैं। 3 मिनट अगर वो प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें 1 या आधा मिनट वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, 2 मिनट बॉडी जो भी उसका मेन बॉडी है उसके बारे में, और आखिर में आधे मिनट का कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो ये 3 मिनट आपने उनसे कहने हैं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 3 मिनट में इंग्लिश होगा। लेक्चर मिक्स दें, लेक्चर में आप दोनों चीजें दें, तो यू वुड फील कि डे बाय डे, क्योंकि देखें ये एक दिन में नहीं आनी लैंग्वेज, ये बैरियर खत्म नहीं होना एक दिन में। वी हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग, जो मैंने आपको एंड पे भी बताया, फीडबैक और इसके अलावा प्रैक्टिस, उससे आप और आपके स्टूडेंट्स बेहतर होंगे। तो वो इसमें कोई महसूस ना करें शर्मिंदगी, या इसमें थोड़ा सा एंजाइटी फील ना करें कि जी हमें नहीं आता या हम बोलेंगे तो कोई करेगा। माहौल अपने क्लासरूम का इतना आइडियल बनाएं, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, कि दे ट्रस्ट यू और दे कैन स्पीक अप, ठीक है। बस दैट्स द ओनली थिंग जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज किसी एक लैंग्वेज को लेके चलेंगे तो वो कुछ समझ नहीं आने लगा किसी को भी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। ओके मैम, अब इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो मैं शाहिदा, अब आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। मैं 1 मिनट मैडम, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूं, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। जरा इधर आइएगा जैन साहब, ये मेरी स्लाइड्स इसके ऊपर विजिबल क्यों नहीं आ रही? ये ये प्रेजेंटेशन ठहरे मैं देख लेती हूँ।